गुड मॉर्निंग सभी को। यूनियन बैप्टिस्ट चर्च ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज परमेश्वर के वचन के रहस्य के बारे में जानेंगे। हमारे बीच में ब्रदर जॉनथन और ब्रदर सैम हिंदी में अनुवाद करेंगे। उससे पहले हम वर्शिप में जाएंगे। हमारे बीच वर्शिप टीम से वर्शिप में लीड करेंगे। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। हमारा खुदा हम गाए होशाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया,
Nearer, my God, to thee, nearer to thee. And though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like a wanderer, the sun gone down, darkness comes over me, my rest a stone. Yet in my dreams I'd be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. There let me see the sight, an open hand, all that thou sendest me in mercy gain. Angels to beckon me nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Then with my waking thoughts, bright with thy praise, out of my stony griefs, Bethel I'll raise. So by my woes to be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Good morning to all of you once again. आप सभी को फिर एक बार गुड मॉर्निंग। And today again we are coming to meet you with God's word, and we will see something. And today we will show you something. फिर एक बार परमेश्वर का वचन लेके आपके सामने हम हाजिर हुए हैं और कुछ दिखाना चाहते हैं। So before that, we'll look to God and pray. उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we commit the viewers into your hands. We commit ourselves into your hands. We ask your Spirit to speak through us. Lead us as we try to explain your word, and lead the viewers also and teach us. Let your light, revelation, and clarity fall upon the scriptures, and help us, Lord, to know the depth and revelation of your truth. Guide us, Lord, as we move forward with your word. Guide us and teach us with your Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. So we will begin with 2 verses, and today's topic is the secret of the prayer shawl, or the secret of the Jewish prayer shawl. और हम 2 वचन के साथ आज आरंभ करेंगे और आज का जो विषय है वो
प्रार्थना का शॉल जो है उसका रहस्य के विषय में हम कुछ देखेंगे। So we will firstly begin with Luke chapter 8, 43 and 44. सबसे पहले हम लूका की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 43 और 44 वर्स हम देखेंगे। And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any. And verse 44, she came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood was healed. और इस प्रकार से यहाँ लिखा है, और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हाकिमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा हुआ और उसी दिन उसका खून बहना बंद हो गया। We all know this incident of this woman who has the issue of this blood for 12 years. हम सब इस स्त्री को जानते हैं जिससे 12 वर्ष से खून जो है बहने की समस्या थी। Now this event is recorded in Matthew, Mark and Luke. अब ये घटना जो है मत्ती, मरकुस और लूका में लिखा हुआ है। And the reason I read from the Gospel of Luke is Luke was a doctor. और यह कारण इसलिए है कि मैं लूका से पढ़ रहा हूँ क्योंकि लूका एक वैद्य था। And there's some clarity and there are some words which he uses which are different and from other Gospels. और वो ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है जो दूसरे किताबों से काफ़ी स्पष्ट है। So, how did this woman know about Jesus and how was she healed? We will dig deeper and learn something today. तो ये स्त्री जो है वो कैसे यीशु को जानी और कैसे वो और गहराई में गई, हम आज देखेंगे। Now, firstly, this woman is segregated from the society. People do not meet her, and she's always rejected by the society. अब सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि ये जो स्त्री है वो जो है समाज से बिल्कुल अलग कर दी गई थी और लोग इसे पसंद नहीं करते थे। So, most of the Bible scholars, they think that maybe there were people who were speaking about Jesus, and this woman heard it from them. कई सारे विद्वान ऐसे मानते हैं कि काफ़ी सारे लोग यीशु मसीह के विषय में कह रहे थे और ये स्त्री उनके मुंह से यीशु के नाम के विषय में जानी। And when we compare this event with other gospels, she says that if I can touch the hem of his garment, I will be healed. और दूसरे जो वचनों में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि ये स्त्री कहने लगी कि अगर मैं उसका जो वस्त्र का किनारा छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। So some people say the if can mean a doubt. तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं ये जो अगर का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो एक शक के जैसा माना जा सकता है। But in the Greek, there are two words for if. मगर यूनानी भाषा में अगर का 2 शब्द पाए जाते हैं। When this woman uses the word if, she is having doubt on herself whether she can go and reach to the hem of Jesus. ये स्त्री जब अगर शब्द अपने आप में इस्तेमाल कर रही है तो वो इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि क्या वो यीशु मसीह का वस्त्र का किनारा छू पाएगी। So she does not have doubt that if she will touch, she will not be healed. But she has doubt whether she can reach him in the middle of the crowd. तो उसका ये शक नहीं है कि अगर वो उस वस्त्र को छुएगी तो वो चंगी होगी कि नहीं, मगर ये शक उसके पास में था कि क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी या नहीं। So she takes a great risk and she reaches and touches the hem of Jesus. तो काफ़ी जो है ये एक रिस्क लेके यीशु के पास पहुँचती है और उसका वस्त्र का किनारा को छूती है। Now what did she touch exactly? तो असल में ये क्या छुई? So we will see some secrets about this shawl which she touches. तो ये जो किनारा या ये जो शॉल को या वस्त्र को जो छुई वो उसके विषय में कुछ रहस्य को हम देखेंगे। So firstly we will see what is this Jewish shawl, and I have bought a sample to show you. तो मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ
कि ये यहूदियों का शॉल क्या है, और उसके लिए मैं एक उदाहरण के तौर से आपके सामने मैं लाया हूँ। So this is a sample of a Jewish prayer shawl. तो ये हम देख सक रहे हैं यहूदियों का प्रेयर का शॉल का यह एक सैंपल है, And it has many threads, as you can see in the corner of it. और किनारे में हम देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे जो है थ्रेड्स यानी सूता जो है नज़र आ रहा है आपको। So in the book of Numbers, God commands the people to make this shawl with blue thread and white threads. गिनती के पुस्तक में परमेश्वर जो है लोगों को कहता है कि ये शॉल जब तुम बनाओगे तो इसमें नीले रंग के जो है पट्टी जो है और सफ़ेद रंग का पट्टी जो है ये मिलाकर इस थ्रेड को, इस शॉल को बनाना। So when the woman comes to Jesus, she touches this corner and this thread of Jesus' shawl. तो ये स्त्री जब यीशु मसीह के पास में आती है तो असल में एक्चुअली ये जो आप देख सकते हैं, ये धागा देख सकते हैं, इसका किनारा को वो छूती है। So we'll see what is the significance of these threads and the shawl. तो हम इस शॉल के विषय में और इस धागे के विषय में देखेंगे कि इसमें क्या ऐसे महत्वपूर्ण बात है छुपी हुई है। Now in Jewish life, this shawl is very important for them. From the time of the birth, they wear this shawl. अभी यहूदियों के जो हम देखते हैं उनके जो संस्कृति के अनुसार ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण शॉल है उनके लिए, और ये लोग जो है जन्म लेने के बाद में ही जो है बच्चे को भी पहनाते हैं। So when a child is born, they make him wear this shawl. तो देखते हैं कि जब एक शिशु का जन्म होता है तो इस शॉल को वो ले जाके पहनाते हैं। Then when the boy reaches 12, or in case a girl, if she reaches the age of 13, then they give her or him a shawl. और उसके बाद में देखते हैं जब वो बच्चा जो है वो 12 वर्ष का या 13 वर्ष का होता है तब ये शॉल उसको देते हैं। And when the person gets married, then they place a shawl on 4 poles, and the boy and the girl stand under the shawl. और जब विवाह होता है तो 4 खंबे में ये शॉल को वे लोग डालते हैं, और उनके बीच में या उनके नीचे जो है दोनों दूल्हा और दुल्हन खड़े हो जाते हैं। And finally, when a person dies, when he's buried, they wrap him up with this same shawl. और उसके बाद में देखते हैं कि कोई व्यक्ति का मृत्यु जब होता है तभी भी देखते हैं कि इस ऐसे ही शॉल से उनको ढांका जाता है। So in Jewish life, this shawl represents the word of God. यहूदियों के जीवन के अनुसार इस शॉल को परमेश्वर के वचन के जैसे जो है वे लोग मानते हैं। Because when God told them to make this shawl, He told them that when you will see the thread, you will remember about my commands and you will remember to obey me. परमेश्वर इसलिए उनको कहता है ये शॉल को बनाओ और ऐसे धागे बनाना, क्योंकि वो कहते हैं कि जब जब तुम इन धागों को देखोगे तो मेरे बातें जो है तुम्हें याद आएगा। And the blue color also symbolizes God and heaven. और यह नीला जो रंग है इसमें ये परमेश्वर और स्वर्ग को दर्शाता है। And this white linen can represent the righteousness of God. और ये सफ़ेद जो धागा है ये परमेश्वर का धार्मिकता को दर्शाता है। Now, first of all, we'll see that when the Hebrews were in Egypt, they were wearing a similar type of clothes. If you study history, अभी आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो जो इब्रानी लोग हैं वो ऐसे ही प्रकार के कुछ वस्त्र को पहने हुए थे। so when they were in Egypt, they tried to wear like this type of a shawl, which made a difference between them and the Egyptians. और वे लोग जब मिस्र में थे तो वे लोग ऐसे ही कुछ एक शॉल पहना करते थे जो मिस्र के लोग और इब्रानी लोग में कुछ अंतर दिखाई देता था। And so this is connected to the Egypt bondage. और ये मिस्र के गुलामी के साथ में भी कहीं ना कहीं जो है संपर्क रखता है। Now we will see that how this can represent God and how it can represent God's word. हम देखेंगे ये कैसे परमेश्वर को दर्शाता है और कैसे परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। First of all, this represents God's presence. सबसे पहले ये परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है।
The Hebrew word for the shawl is talit. इब्रानी में इस शॉल को तलित कहते हैं And the word tal means tent. और वो शब्द तल का मतलब होता है तंबू And it means little. और इत का मतलब होता है थोड़ा. So some people say that when Jesus said in Matthew 6:6 that go inside your room and pray, that to the Jews it was to cover themselves with this shawl and pray to God. मत्ती के पुस्तक उसका 6वां अध्याय का 6 पद में यीशु मसीह जैसे कहते हैं कि अपने कमरे में जाके प्रार्थना करो. यहूदियों के अनुसार इसका मतलब यह होता है कि एक कमरे में जाके अपने आप को ऐसे किस्म का एक शॉल से ढांक के प्रार्थना करो. So firstly, it represents the presence of God. सबसे प्रथम ये परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है. Secondly, it represents the word of God. दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन को ये दर्शाता है. Now, if I draw your attention to this threads, you can notice that they are blue color knots tied here. अगर आप अपना ध्यान को केंद्रित करें अच्छी तरीक़ा से तो हम देख सकते हैं इस धागे में जो है यहाँ पे कुछ गांठें जो है बंधा हुआ आपको नज़र आएगा. Now, first of all, there are 7 knots here. और हम देखते हैं कि यहाँ पे 7 प्रकार के गांठें जो है पाई जाती है. After that, there are 8 knots. उसके बाद में हम देखते हैं 8 गांठें हैं. Then there are 11 knots, उसके बाद हम देखते हैं कि 11 गांठें हैं. and then 13 knots. here. उसके बाद 13 गांठें हैं. So 13, 11, and 8 plus 7 is equal to 39. तो 13, 11 और 8 और 7 ये सारे गांठे को जो है आप अगर मिलाएंगे तो 39 अंक आएगा. And what is 39? There are 39 books in the Old Testament. और ये 39 जो है ये नंबर क्या है? जैसा हम देखते हैं कि वचन में देखते हैं, बाइबल में देखते हैं कि ऐसे 39 किताबें पाए जाते हैं. So this Old Testament has 39 books, and there are 39 knots here, and it represents the Word of God. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि 39 किताब पाए जाते हैं और यहाँ पे इस शॉल में भी पूरा जो है 39 गांठे जो है पाए जाते हैं. तो ये परमेश्वर का वचन को दर्शाता है. Now there are also other types of shawl which do not have the same type number of knots. और भी कई सारे प्रकार के शॉल पाए जाते हैं जिसमें गांठे तो हैं मगर इतने जैसे इसमें है वो नहीं है. So other types of shawl, they have 10 knots, 5 knots, 6 knots, and again 5 knots. कुछ शॉल में देखते हैं कि गांठे 10, 5, 6 और फिर 10 गांठे पाए जाते हैं. Why? Because in the Hebrew language, the 10th alphabet is the letter Y. इब्रानी भाषा में 10वां जो अक्षर है वो Y है. The 5th alphabet is H. और 5वां अक्षर जो है वो H है. And then the 6th alphabet in the language is the letter V. और 6वां जो अक्षर है वो V है. We can also say it is the letter W. हम उसे W भी कह सकते हैं. And again, the 5th letter in the language is the letter H again. और उसके बाद में फिर 5वां जो अक्षर है वो फिर H है. So this YHWH in this Hebrew language is the spelling of Yahweh or Yahuwah. तो एक साथ में इसको अगर हम देखते हैं YHWH इब्रानी भाषाभाषी में ये यहोवा शब्द का जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है. So we can see very well that how this threads are connected to the name of God and to the word of God. तो हम देखते हैं कि कितने अच्छे तरीक़ा से जो है ये सारे धागे में जो है परमेश्वर का नाम भी पाया जाता है. Now this blue also has a significance. ये जो नीला रंग आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं. Now this blue color was acquired from an insect from the sea. They would use the insect and they would get this color blue. अब ये जो नीला रंग जो है समुद्र में एक प्रकार का जो है एक कीड़ा पाया जाता था. उससे जो है ये नीला रंग जो है उन्हें मिलता था. Now because it represents the color blue, firstly we will read a verse.
क्योंकि ये नीला रंग को दर्शाता है, सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। We will see something that is written in Exodus chapter 24, verse 10. हम देखेंगे निर्गम की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसका 10 पद को। And they saw the God of Israel, and there was under his feet, as it were, a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness. और उन्होंने इज़राइल के खुदा को देखा और उसके पाँव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था जो आसमान की तरह शफाफ था। So this sapphire stone is actually the color blue. तो ये नीलम का पत्थर जो है ये नीला रंग को दर्शाता है। Even in Jewish tradition and in history, they believe that when God gave the 10 commandments, the stones of the 10 commandments also turned into the color blue. और जो है यहूदियों के इतिहास के अनुसार परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाएं दी तो वो 10 आज्ञा जो है वो नीला रंग में बदल गया था। And some also try to give a scientific explanation about that. और वैज्ञानिक तौर से भी कुछ लोग इसको बताना चाहे। So we saw in the verse that when God came down, and under his feet was a paved work of sapphire. It was blue color. और हम देखते हैं जब परमेश्वर उतरे तो उसके पाँव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा जो है रखा हुआ था। And so this blue again represents the revelation and God's word. और ये नीला जो है हम देखते हैं फिर परमेश्वर के वचन को और उसके प्रकाशन को दर्शाता है। And so she touches the hem, but she ends up touching him. तो हम देखते हैं वो स्त्री जाके तो इस किनारा को तो जरूर छूती है, मगर असल में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को छूती है। And Jesus says that virtue has gone out of me. और यीशु मसीह कहते हैं कि सामर्थ मेरे भीतर से निकला। And that word for power means, it is a word dunamis. It means anointing. और वो सामर्थ का मतलब जो शब्द है उसको कहते हैं डुनामिस, उसका मतलब अभिषेक। When we see this event, immediately after that, Jesus goes and heals the daughter of Jairus. हम देखते हैं इस घटने के बाद में यीशु मसीह जाते हैं और यरियस का बेटी को वो चंगा करता है। And we all remember the words that when Jesus goes to her, Jesus tells her, Talitha Kumi. और हम जानते हैं जब यीशु उसके पास पहुंचता है तो यीशु मसीह कहता है तलिता कुम। So we always translate it as little girl rise up. और इसका अनुवाद हम इस प्रकार से करते हैं कि छोटी सी बच्ची तुम उठ जाओ या जाग जाओ। But remember what I told you in the beginning, that in the Jewish custom, when a person died, they were wrapped in this prayer shawl. मैंने शुरुआत में जैसे आपको कहा कि कोई व्यक्ति अगर जिसका मृत्यु होता है इस शॉल से उन्हें लपेटते हैं। And when Jesus says to her, Talitha Kumi, that word talit is the same Hebrew word for this prayer shawl, talit. और यीशु मसीह जब उस बच्ची को कहते हैं तलिता कुमी, तो वो शब्द तलित जो है वो इस शॉल को दर्शाता है। So the sentence can be translated as little girl in the prayer shawl, which is the word talit, rise up. तो ऐसा भी अनुवाद किया जा सकता है, हे बच्ची जो इस प्रेयर शॉल में हो तुम जाग जाओ। And another similarity is that her age is 12 years age. और एक हम यहाँ पे देखते हैं बात को, उसका उम्र भी 12 वर्ष की है And she dies. और वो गुजर जाती है। But she is also healed when Jesus enters there. मगर देखते हैं वो चंगाई पाती है जब यीशु वहाँ प्रवेश करते हैं। So this teaches us the importance of God's word. तो ये परमेश्वर का वचन का महत्व को हमें सिखाता है। We also need to touch this hem. This is the word of God. हमें भी इस किनारा को छूना जरूरी है जो परमेश्वर का वचन है। And then she was healed completely. और हम देखते हैं कि वो चंगाई पाई पूरी तरीके से। There were 3 M's in her life. उसके जीवन में 3 M पाया जाता है। The first M was she ran back of medicine. पहला M जो है वो मेडिसिन के पीछे, दवाई के पीछे भागी।
And the second M is she ran back off. She spent all her money. और दूसरा एम है कि सारा अपना पैसा वो खर्च की। She also went back of men. और तीसरा हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पुरुष के पीछे भी वो गई। But when she came to Jesus, she met the fourth M, which is the Messiah. मगर जब यीशु के पास आई तो चौथा एम को वो पाई, यानी मसीहा को पाई, And then she was completely healed. और पूरा तरीका से वो चंगाई पाई। And so you need to understand many things from her life. तो इस स्त्री के जीवन से काफ़ी बातें जो है हमें समझना जरूरी है। Because the way she touches Jesus, it was no woman was supposed to touch a rabbi's clothes if she has this disease. क्योंकि अगर किसी के पास में, कोई औरत के पास में ऐसे समस्या होती थी तो उसका अनुमति नहीं था कि वो जाके यीशु या किसी रब्बी के शॉल के किनारे को छुई। And it takes a lot of courage to confess front of all the men that she touched Jesus' garment. और सारे पुरुष के सामने में ये कहना काफ़ी मुश्किल है, मगर फिर भी वो कहे कि वो यीशु के शॉल के किनारे को छुई। She can be stoned. शायद उसे पत्थर से मारा जा सकता था, But we see her, the risk that she takes, the courage that she has, and the faith that she has. मगर उसका साहस को देखते हैं, उसका विश्वास को देखते हैं, और उस जो रिस्क ली वो देखते हैं। And so we also need to learn from her that if we can touch God's word with faith, then we will be healed. हमें भी उससे सीखना है, अगर हम परमेश्वर के वचन को विश्वास के माध्यम से छुएं तो जरूर हम चंगाई पाएंगे। And so we need to learn so many things from this woman. तो इस स्त्री से इतने सारी बातें जो है हमें सीखना जरूरी है। And so may God bless all of you with this word. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। Shall we to God and pray. आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि प्रभु तूने आज हमें इतना कुछ सिखाया। प्रभु इतने सारे बातें जो है हम सीखे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम भी विश्वास के द्वारा ही तेरे पास आए और हमारा विश्वास को मजबूत कर, ताकि हमारा विश्वास और बढ़ते रहे प्रभु। हाँ प्रभु, केवल शरीर में नहीं मगर सारे जगहों में प्रभु हम चंगाई को प्राप्त करें जहाँ भी हम कमज़ोर हैं। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें इस समय देख रहे हैं, उनके जीवन में तू आशीष दे। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को समझने में उनको तकलीफ़ होता है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें ज्ञान दे प्रभु, ताकि तेरे वचन को और भी ये समझ सके। और हमें भी आशीष कर प्रभु, इस देश में सारे कलीसिया को आशीष कर, इस विश्व में सारे कलीसिया को आशीष कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि सब कलीसिया एकजुट होकर एक साथ मिल के प्रभु तेरी राज्य के लिए काम कर सके। हम ये सारा दुआ यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। Thank you all once again to join with us and to study God's word with us. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और सीखने के लिए। And don't forget to share this teaching to someone, to your friends, and to teach them that they also must believe in God's word. और अपने मित्रों से ये ज़रूर बांटें। आप ये ना भूलें कि कैसे करके भी आप अपने मित्रों से ज़रूर आज का वचन बांटें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के वचन को जान सकें। Till that time, stay blessed and stay happy. तब तक आप आनंदित रहिए और हमेशा आशीष पाइए। Thank you. धन्यवाद।